Okay, so I think we're live. Okay. Okay, I think I just live record on live on Facebook right now. So, right, so thank you everyone for being here. So I know it's a weekend and I'm really glad that you all could make it. The webinar today that we are conducting is called Path to Cloud Security. I wanted to invite a seasoned professional come over and talk to you girls about what cloud security is all about. So just a bit about, let me give you an introduction and then we'll talk about other speakers as well. As cyber criminals regularly become more sophisticated and with fewer barriers to entry, that professionals are more in demand than ever before, and we all know about that, right? Security engineers are becoming increasingly hard to find and expensive to hire. By 2021, there could be estimated of 3.5 million vacant positions in the industry. Because of this, there has never been a better time for you to turn your IT passion into a career in cybersecurity. We're all very excited today to have a seasoned cybersecurity professional with us to answer all your questions. So I hope you guys have a lot of questions for him. Let's welcome Adnan Rafiq. He's an experienced cloud security leader. He has 20 plus years of experience in IT architecture, IT operations, IT consulting, information security, and pre-sales with a strong business acumen. Adnan's core competencies lie in his extensive experience in building and development cloud adoption strategy. And I'm sure, like me, a lot of you don't know what these terms mean. So we're going to read Adnan's head to tell us about all this in a couple of minutes. So just hold on. And in his intake understanding of cloud security, multi-time award winner of ISO, British Columbia, British Computer Society, UAE Web Awards, professional council from Microsoft. Now I don't know whose mic this is, but I can see a lot. I can hear a lot of sound in the background. Can those of you who are not talking, please turn off your mic for a while, so I can finish the introduction. Um, Baka, can you turn off everybody's mic so that we have to turn off mine and then? And let me know if it's from my side because I'm in outside, so I can change my location. Oh, okay. Right. Okay. If it's my side, I can. So Adnan, about, yeah, that would help. Thank you. This helps. Yeah, give So me a Adnan, second. We can do it. Yeah. Yeah, is the background noise coming from my side? I think it was. I think it was. Yeah. So let me see. Give me a second. We can do it real quick. Okay. I can keep you on the line. Give me a second because that's real quick. We can do it. Because I thought it was sunny and nice outside, but I didn't know that there will be this many background noise. So. No, I mean, it's okay. You can stay there. No, you can stay down, but just one of us needs to keep the mic on mute when the other one's talking. So I think that helps. That's all. That's all right. Yeah. So let me finish with the introduction. Adnan completed his master's in tech management from Georgetown University, DC, with majors in security and leadership, and is currently working as a cloud security head in the Great New York City. So welcome, Adnan, and thank you for taking out time for Code Girls. So to begin with, I think I'm going to ask a very basic question, which I think is probably something that most of my girls have in their mind or have clarity about. What does cloud security for a layman or for an entry-level person? What would you say cloud security actually means? Yeah, thank you for the introduction, and Shamim, and it's a pleasure being here. And yeah, I mean, I wanted to keep it simple, right? Because we need to first understand the cloud
and then we want to talk about security on top of that. So for cloud, just imagine it's as simple as when you are using your email on Gmail or Microsoft Outlook. Cloud is on Facebook is based on cloud. Any application you use today or we use today is based on cloud. So basically, if somebody asks, explaining cloud kya hota hai? So the way you don't need to have your data center. So for example, if in country like this, if I have to think of electricity, internet is a utility. So you pay as you go, like your mobile connection. So you don't build your telecom company like PTCL used to be, but like there are so many telco providers in Pakistan. So one simple example is that you don't have to keep your generator. I know Pakistan mein light ka issue hai, but again, to have your own electricity, you guys have your generator. And in order for you not to have generator, you go with electric company. Same thing applies in the cloud. I do not need to build my servers and data centers. So I want to rent it out. Take an example of an Uber. You don't own a car, but you have a service. Take an example for Airbnb. You don't have a house, but you have an accommodation. It's a service-based business. Same thing comes to the cloud, that if I want to build my application, I do not need to rent a server. I do not need to take care of the maintenance. I'll just go to AWS, Google, or Microsoft Azure. I'll spin up a server, and there you go. In 2 minutes, I have my server up and running. If you think in traditional model, for a company to design an app, they need at least for example, 4 servers, 8, whatever. So it will take them maybe a week or 2 weeks, and then they have to care about electricity bill, the fire, the smoke alarm, you name it. So in cloud, you really don't need anything. So you can be focused. So the model of cloud is pay as you go service model. So you get the service what you need, you pay for the service, and there you go. So that's in a nutshell what explained is cloud. And I'll be pausing during the session. You're on mute, but if you have any question, you can make it interactive. So I'll be doing some pauses. And I'm fine with speaking Urdu and English, whichever. So I just want to make sure my audience, the people who are watching, they get the best and most out of me. Absolutely. Absolutely. Thank you so much. So I think I've asked the girls, so whoever will have a question will either put it in the chat or she will just raise her hand and we can unmute them so they can ask the question. So that's not an issue. So I'm not watching the chats. Yeah. So yeah, if you see this, I am watching it right now. Okay. Yeah, I am watching. So ladies, if you have any questions, even in between the conversation, please raise your hand and ask. So like one of the questions that I have, which came up from what Adnan was just talking about cloud. Adnan, would you explain, so you spoke about data centers and then you spoke about cloud. And you said that, to host your own website, you would have to spend servers and that would take weeks. Obviously it would, if you're talking about your own data center, right? But what is the difference between a conventional hosting like GoDaddy? Like I know GoDaddy might also have cloud services now, but there's a difference, right? They have those physical servers and then they have the cloud. So I'm not talking about me having my own data center, but me buying a hosting. So what is the conventional hosting versus a cloud hosting? You can keep it simple, maybe about, the elasticity side of things and maybe a little bit. Right. But that question is really good. I mean, somebody has knowledge on it. So that's the question is coming from, So yeah, that's a very good question, I must say. That question came from me. So I'm just trying to get the girls warm to start questioning. Awesome. Yeah, बहुत अच्छा question है, definitely. कि traditional hosting और cloud में क्या फर्क है? Okay, this is one must understand, right? Traditional hosting, we've seen it like last 20 years हम देखते हुए आ रहे हैं, GoDaddy हो गया, Bluehosting, so many companies, right? तो traditional hosting में मसला ये है कि it's just a hosting, right? So you can go to a website, आपने GoDaddy से website लिया, WordPress का आपने बना ली.
और ट्रेडिशनल होस्टिंग में आपने अपने सर्वर अगर रेंट करना है तो आपने बोला कि हमें ये स्पेसिफिकेशन चाहिए विद इंटेल Xeon 64 GB रैम एंड दैट्स इट। अब जब क्लाउड में डिफरेंट डिलीवरी मॉडल्स हैं and different deployment models हैं, so there are different kinds of cloud. We will not talk about it now, but delivery model पे बात कर लेते हैं to address your answer. Infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So अगर आप developer हैं तो forget infrastructure as a service as we talk now. So we can talk more on the back end. SQL servers बनाने, backend configuration, programming and all that. So where it will apply the concept of platform as a service. और अगर आपने front end coding करनी है तो उसमें most probably अगर आप API based काम कर रहे हैं और REST API use कर रहे हैं और if you doing a API and writing a code in Python or something. So this is where the software is a SaaS application. So उसकी तो मेरा रिसेंटली जो मैं प्रोडक्ट्स में जो देखते हैं काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे भी है और दूसरे प्लेटफॉर्म भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक रिपोर्ट पुल करनी है कि मेरी कंपनी में, जैसे गिव एग्जांपल मेकअप कर रहा हूँ, देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल कि मेरी कंपनी में अगर फॉर एग्जांपल 50 या 100 यूजर्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड इफ आई नीड टू पुल देयर एक्टिविटी रिपोर्ट, सो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो या तो मैं easiest is that जो built in API होगी उसको यूज करूंगा, थोड़ा सा कोड लिखूंगा और वो API बैकएंड सर्विस पे जाके जो उन्होंने पब्लिश किए हैं रिपोर्ट लेके आ रहे हैं 400 यूजर्स की एक्टिविटी उन्होंने कितनी ईमेल्स भेजी और ये सब कुछ किया। तो इसमें देखा मैंने कोड लिखा, फ्रंट एंड API को लेवरेज करते हुए एप्लीकेशन बना दी जो मुझे डेली रिपोर्ट देगी यूजर की एक्टिविटी की, सिंपल इज दैट। तो ये सॉफ्टवेयर सर्विस मॉडल में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने कोडिंग की अपनी फ्रंट एंड, आपको कोई उससे कंसर्न नहीं है बैक एंड पे क्या चल रहा है। फर्दर मोर एडवांस लेवल आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपनी एप्लीकेशन और इसके साथ जो है मैंने अपना कुछ कस्टम डेवलपमेंट भी करनी है और लेकिन बैक एंड के सर्वर मेरी मर्जी को, मैं लिनक्स में SQL चलाना चाह रहा हूँ या ओरेकल चलाना चाह रहा हूँ या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर चलाना चाह रहा हूँ। तो उसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि आप वो सर्वर्स जो हैं you just rent them. So basically उनकी जो configuration होगी servers की, you do it. लेकिन आपने elasticity and high availability की जो हम बात करते हैं वो प्रोवाइडर देगा, तो आपको उस पर कंसर्न नहीं है कि उसका डाउन टाइम है कि सर्वर बैठ गया नॉर्मल है कि पैच अप्लाई सही नहीं हुआ, सर्विस अनअवेलेबल है, तो वो आपका मसला नहीं है क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आपने बोल दिया मुझे आई वांट टू रेंट अ SQL क्लस्टर, ओरेकल का हो या MySQL हो जो भी हो, आपको वो क्लस्टर आपने रेंट कर लिया जो कि ट्रेडिशनल होस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। आप इंडिविजुअल फायरवॉल रेंट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को जब रेंट करते हैं वो ट्रेडिशनल होस्टिंग में कभी पॉसिबल ही नहीं है। पूरा सर्वर आपने रेंट करना है, बिल्ड करना है, या आपने वर्डप्रेस का फ्रंट है, तो बीच में जो मिडल गैप है जो कि बहुत सी कंपनीज को रिक्वायरमेंट होता है वो नहीं हो रहा था। तो इसमें फिर आपका इलास्टिसिटी का आता है। इलास्टिसिटी में हम बहुत बात कर सकते हैं कुबरनेटिस पे, डॉकर्स पे, कि उसमें मैं बाद में आता हूँ। थर्ड में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ जो भी ऑडियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में होता है कि इसकी भी बहुत डिमांड एंड जॉब है कि कंपनी बोलती है कि हमारे पास 4 डेटा सेंटर हैं और बिकॉज ऑफ कॉस्ट सेविंग CIO नया आया और वो बोलता है कि हमें रिड्यूस करने हैं 4 से 2 पे, लेकिन फर्स्ट फेज में हम 1 डेटा सेंटर कम करेंगे। अब उस डेटा सेंटर में अगर 500 सर्वर्स एंड एप्लीकेशन चल रही हैं और उनको कॉस्ट मिलियन डॉलर कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे AWS में, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में। तो 500 जो उनकी मशीन होंगी वो VM में बंद हो जाएंगी क्योंकि क्लाउड इज ऑल अबाउट वर्चुअलाइजेशन, इज ऑल VM, तो वहां मूव कर देंगे। But they will save their cost on real estate, on electricity, on power, on everything. So that's in a nutshell, you're talking about 3 different models. अब हम आ जाते हैं इलास्टिसिटी पे, जो कि और फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इलास्टिसिटी पे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई कंपनी को मार्केटिंग कैंपेन रन करनी है या कंपनी को कोई 3 महीने का प्रोजेक्ट मिलता है, तो उस 3 महीने के प्रोजेक्ट की आपको जो कंप्यूट चाहिए, सर्वर, मेमोरी एंड एवरीथिंग, अगर आप ट्रेडिशनल मॉडल में जाएं हो सकता है आपको कॉस्ट करे, लेट्स सपोज करने 10 लाख पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, और 3 महीने के बाद आपको नहीं पता उस प्रोजेक्ट की सिचुएशन क्या है। तो होता है क्या है, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो आपकी रिसोर्सेज सारी वेस्ट हो गई क्योंकि 3 महीने बाद कोई यूज नहीं कर रहा।
क्लाउड में आपको 10 सर्वर्स चाहिए, 20 चाहिए, 50 हो, पे एज यू गो मॉडल, एंड देयर यू गो. So, in a nutshell, हम जो सबसे basic difference अगर in layman बताना चाहें between cloud and a conventional hosting model would be कि hosting में हम एक specific size जो है वो allot करते हैं, उसके लिए pay करते हैं by the month or by the year, regardless of the fact कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते. Cloud में ये होता है कि हम जो as you go वाला model होता है कि जैसे जैसे आपको requirement होती है, आपकी जो है सर्वर की जो स्पेस है, whatever infrastructure that you need, कितनी चाहिए आपको, वो बढ़ती चली जाती है, कम होती चली, राइट? और आप फिर उस उतना आप इस्तेमाल करते हैं, आप पैसे भी उसी के देते हैं. So you, like you said, you save on real estate, you save on power, you save on memory, processing time, so all that. Yes, pay as you go on. You pay for individual compute. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा जी, so yeah, thank you so much. I think that was a very on spot answer. अच्छा, मुझे ये बताएं before we move on and we have a lot of questions, और हमने आपका जो इंट्रोडक्शन दिया है वो तो बहुत ही लिंक्डइन टाइप का इंट्रोडक्शन है ना कि जी ये है, but tell me how you started and tell me how you got into cloud cybersecurity and why you chose this field specifically for our audience. Right. So 3 questions. How did I start and in cloud and security? So I think it's basically no, yeah, you know, I want to know. I want. So computer की फील्ड में मुझे पैशन तो शुरू से ही था. So in my childhood 9th या 10th grade में जब हमें सबसे पहले DOS सिखाई गई थी, तो तब से मुझे कंप्यूटर्स में शौक था. तो विजन क्लियर था कि मुझे कुछ करना है टेक इंडस्ट्री के अंदर ही. और फिर डेवलप होता गया, पाकिस्तान से पढ़ा वहां से, और फिर 2-3 कंट्रीज में काम किया, यूएस में हुआ, और यहाँ भी आए हुए बहुत अर्सा हो गया मुझे. तो क्या होता है कि एक थिंग मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू वांट टू लीड, you always have to start learning. So the more you learn, the more better you become a leader. So learning होनी चाहिए. Learning के लिए then you have to be कि मार्केट में क्या चल रहा है. तो मैंने एक टाइम पे जब यहाँ आया था शुरू में, तो मुझे फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा था. सो फर्स्ट थिंग कि आपने अपनी रिसर्च करनी होती है, और फिर अपने विद इन द ग्रुप आपने अपने आप को ग्रो करना होता है, देखना मार्केट में, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका उन लोगों से कनेक्शन बनता है. नहीं भी बनता तो उस पर भी मैं कभी बात करूंगा किस तरह से वो नेटवर्क करते हैं प्रोफेशनल्स. सो मैंने जब मैं दुबई में आता, मैंने बहुत इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराया माइक्रोसॉफ्ट के रोड शोज में, उनमें स्पीकिंग भी करता था, IEEE में भी किया मैंने, सब में किया. तो मेरी प्रोफाइल जो है ऑर्गेनिकली डेवलप हो रही थी. When I get to the point कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्लाउड में, सो यूजुअली आई अटेंड, अभी तो कोविड है लेकिन माइक्रोसॉफ्ट या जो भी दूसरी कॉन्फ्रेंसेस होती है जो मेरे सिक्योरिटी से रिलेटेड, में उनको पर्सनली अटेंड करता हूँ, और उन कॉन्फ्रेंस में जाके आई ट्राई टू मिंगल अराउंड विद द पीपल, आल्सो मेक नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी पे आप अप टू डेट रहते हो, क्या चल रहा है. Sometimes when you talk with the people, you get the idea कि क्या चल रहा है. So you have in the industry, और आपको इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है. तो क्लाउड बेसिकली ऑर्गेनिकली जो मेरे स्किल्स थे, अभी भी लड़के हैं जो क्लाउड पे या लड़के नहीं काम करते, तो दैट पॉइंट आई वाज लाइक आई नीड टू लुक इन दिस. मैं बता रहा हूँ आपको 2011ish आई बिलीव. तो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में कंपनी को माइग्रेट करना था, उनका ईमेल सिस्टम था, उनको माइग्रेट करना था क्लाउड पे. तो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी. और उस वक्त जब मैं काम करना स्टार्ट किया, आई बिलीव दैट टाइम बहुत से लोगों ने बोला यार ये 1-2 साल है, फॉरगेट इट. तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू टेक योर कैलकुलेटेड रिस्क. अगर मैं करूंगा तो व्हाट आई एम गोना लूज. ठीक है, जो मैं जॉब करूंगा दोबारा मिल जाएगी. अगर ये हिट हो गया तो कुड हैव अ डिफरेंट करियर. सो आपने फिर वो उसका कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है. ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह जंप लगा रहे हैं जिसका करियर ही नहीं, और आपने रिस्क लिया कि आपने अपना करियर खराब कर दिया. ऐसे भी नहीं होना चाहिए. और आज तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कोई सा क्वेश्चन है ही नहीं, आप कोई भी रिस्क लें
उसका कोई डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है, यू विल गेट टू समवेयर बेटर। तो इस तरीके से फिर मैंने क्लाउड पे आना शुरू किया। उसके बाद मैंने बहुत स्टडी की और सर्टिफिकेशन, देन एग्जाम, मैंने अपने आप को पूरा 180 डिग्री पे अपने स्किल सेट एंड एवरीथिंग फोकस करके चेंज किया। Yeah, I just have to be master in cloud. करता रहा। Or other than my job, I've been always active in communities and speaking, technical writing, all that stuff. For the last 4 years, फिर मुझे के असल में करना क्या था, आपने अपने आप को रिवैल्यूएट करना होता है। तो अब मेरा क्लाउड इतना चल रहा है क्योंकि क्लाउड की इंजीनियरिंग और हर चीज को मैं देख रहा हूँ, तो सिक्योरिटी माइंडसेट मेरा इसलिए पहले से भी था कि मैंने बैक इन 2003 या समथिंग इस्लामाबाद में कोई इतना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए। सो फ्रॉम दैट ऑलरेडी हैड इट कि जब मैं सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में बेसिक नॉलेज, सिक्योरिटी, फायरवॉल, ये चीजें पता थी उस जमाने से। तो व्हेन आई गॉट इनटू द क्लाउड प्रोजेक्ट, मुझे गैप नजर आने लगे। सो आई टुक दोस गैप एज एन अपॉर्चुनिटी, यार इस पे काम करें। फिर मैंने अपने आप को उसमें मोर फोकस किया कि कहाँ गैप्स हैं। अभी भी एज आई स्पीक टन ऑफ गैप्स इन क्लाउड फॉर सिक्योरिटी ऑल्सो। तो ये मैं 5 साल पहले का बता रहा हूँ, जब मैंने लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया और वहां गैप्स देखे, और देयर वाज अ गुड बर्ड्स आई व्यू मुझे मिला कि कहाँ गैप्स हैं, क्या नहीं है, क्यों कंपनीज क्लाउड अडॉप्ट कर रही है, वो कंपनी जो क्लाउड अडॉप्ट नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। That's got me into more and more. और फिर वहां से मैंने आई स्टार्टेड मोर डिगिंग। तो सिक्योरिटी मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में जब मैं वर्ड यूज करता हूँ, क्लाउड सिक्योरिटी टुडे इज डिफरेंट। यहाँ पे भी लोग, उनके लिए एक नई चीज है, दे विल लर्न एज दे गो, क्योंकि जो क्लाउड का जो मॉडल है सिक्योरिटी का, शेयर रिस्पॉन्सिबल मॉडल, व्हेन यू गो इनटू क्लाउड, आपकी आइडेंटिटीज एंड एवरीथिंग। So that's how I got into it, and that's my primary job, to help companies and organizations के आपका cloud security posture कैसा होना चाहिए. I hope that answers. I believe हमारी host disconnect हो गई हैं. Just fix my camera or not. Right. Please go on. Yeah. I think it was me, it wasn't you, I think. You hear me now? No, yeah, I think you can keep the video on. It wasn't you, it was my end. And I think the video keeps more interaction. So it's fine, please go on. आपका माइक जो है वो म्यूट है अदनान, I think. Yeah, sorry. Is better now? Okay. You guys hear me now? Okay. So if there are no questions, then I'll keep continuing. So that's how I started more into cloud. The cloud, cybersecurity, information security, cloud security, these are the concepts around that. The cloud security, man, you're on mute. Go ahead. And I think I made some really good pointers. I missed you in between, but I think I got the gist of it. But if you want to finish that, I can then go to the next question. If you want to add anything else to this now? No, Awesome. I'm good now. Go ahead. All right, good. So you spoke about, market readiness, and you spoke about keeping up to date with technology, and for that, networking a lot, taking smaller risks. So what do you, so before we move on and we talk about the jobs and available in cybersecurity, would you be able to break down for us what sort of trajectory we're looking in, not in terms of, so when somebody wants to enter into cybersecurity, into this domain,
what sort of background she should have or he should have, and what sort of courses or trajectory are they looking in terms of growth also, and then what roles are available. So I'm starting with data from entry level to a mid level to a high level professional. So this is a very big question, if you see what I'm saying. Right. Training market in terms of compensation packages कैसे नजर आते हैं. So if you could take us through that route. ठीक है. So we will talk about global market और पाकिस्तान में भी लोगों को इसमें जॉब कैसे मिल सकती है. So we can talk about the global market, but I think it's the same locally and globally for now. But let's just talk generic, and then we can talk specific to Pakistan and then to the global market. But if we can be very generic, कि training कैसे ली जाएगी, उसके बाद हम अपना trajectory, growth trajectory क्या देखते हैं कि अच्छा मैं कैसे enter करूँगी, फिर उसके बाद how do I grow in the organization as a cyber security professional, and then the third thing is what am I looking in terms of compensation versus being a developer or versus being somebody else, right? Right. So how to get into it? Let's answer. Okay, this overall global job market है, और as I said before कि पाकिस्तान में भी job opportunities किस तरह निकलेंगी. So global market, if you look at Google करें आप, तो within 3 to 5 years, just in US में 500,000 job है, 500,000 job. तो वो जॉब क्यों है, इस पे भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. ये कोविड की वजह से तो बढ़ गई है, लेकिन जॉब का राइज है, क्योंकि अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट में आर्टिकल पब्लिश किया था और उसमें मैंने यही कंसर्न की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी बड़ा रिस्क है टू अलाउ वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट स्टफ. सो राइट देयर इट टॉक्स अबाउट जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी. ये जितने जो लोग घर से काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फ्रॉम अनमैनेज्ड लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, अनमैनेज्ड डिवाइसेस, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, so it creates a lot of opportunity. So global market, there are hundreds and thousands of jobs. आप Indeed पे चले जाएं, LinkedIn पे देख लें, कहीं पर भी देख लें, there are jobs हैं. अब दो चीजें हैं, how do you get into it? So अभी जैसे कि मुझे बताया कि आप लोग जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, basic level of knowledge of IT, so you are good at there. लेकिन what should you be doing next? So two principles आप ले सकते हैं. एक तो आप जा सकते हैं DevOps, SecOps, which is security operation, जहाँ पे आप सिक्योर कोड लिखते हैं. अगर आप प्रोग्रामिंग की साइड पे जा रहे हैं, तो क्लाउड में डेवलपमेंट का जो मॉडल है आज जो यूज होता है, उसको CI/CD कहते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट. तो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जो हो रही है, एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, यू हैव टू मेक श्योर वो कोड जो है वो सिक्योरिटी रिटन है, और आप उसको सिक्योरिटी डेवलप लाइफ साइकिल डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, उसको आप फॉलो करेंगे, उसमें उसी हिसाब से उसकी टेस्टिंग होती है. सो एज अ डेवलपर यू हैव टू नो दोस स्किल्स, दोस फ्रेमवर्क, कि अगर आप अपनी ऐप पब्लिश कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट पब्लिश कर रहे हैं, तो आपने क्लियर टेक्स्ट यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला. सुना है मैंने कोई कोविड की ऐप बनी थी पाकिस्तान में, उसका पासवर्ड ही हैक हो गया, उसने यूजर नेम पासवर्ड डाला. दैट वाज लाइक रियली. So those are the things you should not be doing. Let's not go there. नहीं, मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया, मुझे किसी दोस्त ने, मुझे किसी दोस्त ने बताया था, मुझे नहीं पता, मुझे लास्ट वीक किसी ने बताया था. जी, that's what happens when you try to do everything yourself and don't involve the private sector to do it. So right, you need, exactly. So you need professionals, right? That's what I'm talking about. So you have to have professionals. The professional उसी तरह deliver करता है जैसा दूसरे profession. So let's not go there. So that's one track. अगर आप development side पे भी जा रहे हैं, तो आप अपने जो codes या practices लिखते हैं, ये secure होनी चाहिए. और दूसरी side होती है IT की. और IT की side पे जो जाते हैं, जिसमें मैं काम करता हूँ, वो यही है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर किया हुआ, या अगर कोई डेवलपर ने कोई एप्लीकेशंस बनाई हैं, तो यू विल इन्वॉल्व इन दोस, के आपकी एप्लीकेशन जब आती है उससे पहले उसको स्कैनिंग करते हैं.
there are very known terms which is specific to cyber security, very known in this area. Pen testing होती है, vulnerability scanning होती है, which is penetration testing. Before आपका वेबसाइट लॉन्च होती है, उसको स्कैन किया जाता है. These are the things. तो वो उसके टूल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. मैं आईटी साइड की बात करूँ तो ये इसकी अपनी ही एक जॉब है कि कंपनीज प्रोफेशनल हायर करती हैं जो कि vulnerability स्कैनर और पेन टेस्टर हायर करती हैं जो कि सिक्योरिटी कंपनीज है. तो वहाँ क्या एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब होगी या पेन टेस्टर की जॉब होगी. दैट्स अ जॉब इटसेल्फ आईटी सेक्टर में. फिर अगर आप और जाना चाहें तो उसमें जैसे कि कंपनीज के अंदर खिलाती हैं जॉब इंफॉर्मेशन एनालिस्ट और सिक्योरिटी एनालिस्ट. अगर आप गूगल करें या आप इंडीड पे जाए सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करेंगे, उनका दे मे बी वर्किंग फॉर अ सिक्योरिटी फर्म, मे बी McAfee, मे बी Symantec, मे बी I don't know, there are so many security companies who provide security services. तो एज एन एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, अगर आपके पास थ्रेट्स आ रही हैं आप उसको मॉनिटर करते हैं, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग इट. तो उसमें सबसे जो बेसिक स्किल यू नीड टू लर्न इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग. मैं सारे फोरम्स पे यही करता हूँ, बहुत सारे जो होते हैं उस पर कि इफ यू हैव वेरी सॉलिड बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग यू आर गुड. रीजन इज व्हाई, क्योंकि हम जो चीज डील कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ऐप हो गई या कुछ भी हो गया, हमारे को किस चीज में इम्पैक्ट करता है. वो ऐप का कोड है तो वो इम्पैक्ट करेगी आपके मोबाइल iOS को, तो आपको iOS अच्छा पता होना चाहिए. एंड्रॉयड है तो आपको एंड्रॉयड के बारे में पता होना चाहिए. विंडोज है तो विंडोज पता हो, लिनक्स हो. तो उसमें टाइम लगता है और यू डोंट हैव टू गो इनटू द वीड्स कि आप बिल्कुल उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, बट यू नीड टू हैव इनफ नॉलेज कि कैसे काम करती हैं. फिर नेटवर्किंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्किंग में आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसलाइन फायरवॉल्स क्या होती हैं और बेसलाइन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, वो आपको पता होने चाहिए. फिर एज यू कीप ग्रोइंग then all the way at the top you need to know all these that I've been mentioning about the frameworks. They are the NIST framework, they are ISO 27701 and to those kind of frameworks, from British framework, European frameworks, depending आपकी country में कौन से ज्यादा यूज होते हैं, इन चीजों को पता होना चाहिए. तो फिर आप उसको एज अ हाई लेवल आप काम कर सकते हैं कि अगर आप क्लाउड के अंदर आपकी कंपनी अगर माइग्रेट कर रही है उसको 500 सर्वर्स डिप्लॉयमेंट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सो आई हैव टू मेक श्योर कि वो मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन रिक्वायर करें. अगर नहीं है तो यू डेवलप दोस प्रैक्टिस, गवर्नेंस होती है उसके अंदर. तो वो चीजें, अब क्वेश्चन ये होगा कि आई एम श्योर पाकिस्तान में ये चीजें भी नहीं है लेकिन आएंगी. और क्यों आएंगी, इसकी दो चीजें हैं. हमारे ट्रेडिशनल जो मॉडल चलता रहा है पाकिस्तान में भी पिछले 20-25 सालों से, वो ये होता है कि हमारे जो कुछ अच्छे प्रोफेशनल जो अमेरिका आ जाते हैं तो वो अपने सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में खोलते हैं, तो उस तरह की जॉब्स वो आउटसोर्स करते हैं पाकिस्तान में. अब ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल या नेचर ऑफ वर्क तो है, इसके साथ इवॉल्व जो हुआ है प्लेटफॉर्म अपवर्क या जो भी कंसल्टिंग जो जॉब होती है, रिमोट जॉब जो निकल रही है, और बहुत से लड़कों को मैं जानता हूँ, दे मेक गुड सैलरी. पाकिस्तान में बैठे हुए वो $1,500-2,000 बनाते हैं, विच इज गुड मनी. लेकिन उनका वो स्किल सेट है, वो क्या करते हैं, यानी फ्रेम ऑनलाइन अपवर्क इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑफ द स्किल सेट, पर आवर $5, $10, $12 जो भी उनका, तो महीने के अंदर $1,500-2,000 बना रहे. इट्स अ गुड सैलरी इन पाकिस्तान, वहाँ टैक्स भी इतना नहीं करता फॉर एग्जाम्पल. सो अब ये जो रिमोट वर्क का प्लेटफॉर्म जो आ गया है, टैक्स लगता है सर, बहुत टैक्स लगता है. अच्छा सर, टैक्स के बारे में मेरे एपिसोड्स बनी हुई है, उसके बहुत सारे बेनिफिट है, बट अगेन इट्स गुड कि अगर आप टैक्स देते हैं तो इट्स अ लॉन्ग कन्वर्सेशन. सो अब जो प्लेटफॉर्म जो बन रहा है वहां पे रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी इस तरीके से हैं कि यहाँ पे 5 लाख जॉब की रिक्वायरमेंट तो राइट अवे स्किल तो नहीं आएंगे, तो इसलिए जो लोग बाहर बैठे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वो इन्हीं प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट होंगी. और मजे की बात, कोई आपसे अपवर्क पे नहीं पूछता कि 4 साल की डिग्री दिखाओ, यू नो द स्किल्स, गेट द जॉब डन एंड दैट्स इट. तो आपको 4 साल वेट नहीं करना पड़ रहा. अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं और अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाते हैं एजोर के या माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के, रिगार्डलेस आपको जो पता है, या ठीक है मुझे ये कंट्रोल्स हैं,
मुझे आए तो आप जाएं अपना बिड करें, प्रोजेक्ट मिल सकता है, देन यू कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सो ये इवॉल्व हो रही है। तो फॉर एग्जांपल होता है क्या है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर जो रेवेन्यू पाकिस्तान में जो आता है बाहर से सिर्फ $4 बिलियन है, हमारे नेबरिंग कंट्री में $180 बिलियन, तो हम 2.5% भी नहीं लाते। तो वो जॉब्स कहाँ जाती हैं? पड़ोसी मुल्कों में जाती हैं। क्यों जाती हैं? जब कोई गूगल या अपवर्क पे जाएगा स्किल सेट, तो 98% स्किल सेट की अवेलेबिलिटी हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, हमारे यहाँ कोई पोस्ट नहीं करेगा, बिड नहीं करेगा, तो जॉब कहाँ से आएगी? तो स्किल्स का गैप हो गया ना। So right there, there's a huge market available in those skills. Let me just, sorry, I'm just interrupting. Let me just add to that. ऐसा नहीं है कि स्किल सेट का है। अगर आप फ्रीलांसिंग कंपनीज के फ्रीलांसिंग मीडियम्स की बात करते हैं, so apart from the neighboring countries, Pakistan is number 4 on freelancers. So there is a lot of skill set available. ये जो आप बात कर रहे हैं is because there's a lot more to this than just the fact that skill set नहीं है. A lot more has to do with how the public sector or how the government basically supports the private sector or the IT industry in Pakistan. अभी भी जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सीरियस नजर नहीं आती। ठीक है, सो इफ यू नो, अभी जो इवन दो हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 5 साल में 20 लाख और $20 बिलियन पे लेके जाना है हमने IT का रेवेन्यू, लेकिन जो इस दफा का जो बजट आया है आपका, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैं किसी और इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, डेवलपमेंट करती है, कोर डेवलपमेंट, उसको इतना छोटा आपने बजट एलोकेट किया है, विच इज 40 मिलियन रुपीज। कोई भी मीडियम साइज कंपनी जो पाकिस्तान में, ये आपने साल का बजट उनको दिया, 40 मिलियन रुपीज दिया है, और पाकिस्तान में कोई भी मीडियम साइज कंपनी, उसका एक महीने का पेरोल होता है 40 मिलियन रुपीज। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट ये इस तरह की आपको हेल्प मिलेगी, तो जो भी आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में 4 बिलियन या 3.5 बिलियन है जो भी ला रही है, वो अपने बलबूते, आधा जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल है। वो समझते हैं कि आईटी और आईटीएस सेक्टर की डिमांड क्या है और कितनी इसके अंदर कितना लुक्रेटिव सेक्टर है ये, आप उसको कितना ज्यादा आगे लेके चल सकते हैं। सो क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पेन पॉइंट है पाशा, जब कोई इस तरह की बातें करते हैं तो हमारा दिल दुख जाता है, तो हम कहते हैं कि जी रुक जाएं, हम जरा आपको क्लैरिफाई करें कि ऐसा क्यों है। ठीक है, आई कैन गो ऑन एंड ऑन दिस, टू मूव ऑन। The only point I was making, मुझे तो डिटेल्स आ नहीं पता, is glad कि आपने बताया, लेकिन only point is the huge difference। हम 2.5% भी नहीं लाते हैं, बस कहने का मतलब कहाँ 180 बिलियन और कहाँ 4 बिलियन। और तो और दूसरी बात तो इसलिए कहना चाहूंगा, टैलेंट बहुत है हमारे यहाँ, पाकिस्तान से ही पढ़े हुए लड़के। आप डिस्कनेक्ट हो गए आई गेस, और या ओके, तो हाँ that's fine। तो दूसरा मैं ये भी ऐड करना चाहता कि एक से टैलेंटेड लड़के या लड़कियों को जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पे, दे आर वर्किंग इन द टॉप फर्म्स, तो वो नहीं, टैलेंट नहीं है, अगेन वो रिसोर्सेज नहीं है, डायरेक्शन नहीं, वी कैन गो एंड ऑन, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कोई क्वेश्चन है या मैं आगे कंटिन्यू करूँ? नहीं, प्लीज गो ऑन, आप आगे कंटिन्यू करें। एक सवाल आया है हमारे पास यसीरा की तरफ से, इट इज अगेन टुवर्ड्स द सेम थिंग, तो आई जस्ट रिपीट इट ताकि फिर आपको पता हो कि वो व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। तो यसीरा इरफान कह रही हैं कि जी हाउ कैन वी लर्न साइबर सिक्योरिटी, लाइक फ्रॉम वेयर? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आपने मेंशन किया, बट यू नो इफ यू कुड टॉक अबाउट दोस सर्टिफिकेशंस अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल, ये कि ट्रैजेक्टरी अगेन कैसे। थैंक यू। तो ट्रैजेक्टरी जॉब वाइज, मार्केट वाइज, is there is no second opinion, just go for it। if you have to go blindly, आप चले गए ना, आपकी जॉब नहीं लगे, मुझे गिरबन पकड़ना आप आके कि आपने गलत मशवरा दिया। that's where I see the market is going। अब स्टार्ट कैसे किया जाए? तो बेसिक फाउंडेशनल कोर्स आप करें कामटिया से। कामटिया के कोर्सेज हैं आईटी फाउंडेशन, क्लाउड प्लस है क्लाउड फाउंडेशन, एंड उसके बाद जब आप फाउंडेशन लेवल की नॉलेज डेवलप कर लें, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग बेसिक्स कनेक्ट हो जाएगा, आपका क्लाउड प्लस सीख लेंगे आप,
Then there is Network Plus and Security Plus. So you should be done within 6 months, in my opinion, with these courses and with also some hands-on. तो जो सिक्योरिटी में या किसी भी फील्ड में जो होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि ऑफ कोर्स अगर मुझे हायर करना है किसी को, मुझे somebody who can deliver to me, काम करके दे सके, तो that's where hands on comes into the action. तो डेवलपमेंट जो आप करते हैं हैंड्स ऑन, वो तो आप कोई पाइथन का कोड लिख रहे हैं या C++ का, तो बड़ा आसान होता है, लैपटॉप पे अपना एनवायरनमेंट बना लिया. सिक्योरिटी में कैसे लाएंगे, तो चैलेंज जो आता है. तो उसके लिए सिमुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन, जो आजकल क्लाउड में लैब्स बनी हुई हैं, और वहां पे आप देखें इवन के कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स की आई बिलीव 1 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री होती है, तो बार बार सब्सक्रिप्शन लें, बार बार हाथ साफ करें. माइक्रोसॉफ्ट एजर स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन पे क्रेडिट देता है $200 का, उस पर हाथ साफ करें. AWS या गूगल का भी आई थिंक फ्री है, उस पर हाथ साफ करें. मशीन्स बनाएं, ऐप करें, मतलब आप जितना मैसअप करेंगे वो ये कि एक बच्चे को पजल दे दें, खिलौना दे दें, उसको बार बार तोड़ें. और जितने आवर्स आप लगाएंगे स्टडी करने के बाद, ऐसे तो आप करेंगे तो आप वेस्ट करेंगे टाइम. तो यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये कोर्सेज आपने पढ़े, जैसे आपको 3-4 कोर्स बताया, सिक्योरिटी प्लस, नेटवर्क प्लस, क्लाउड प्लस, उसमें आपको टूल्स भी बताते हैं वो कि आपने कौन से टूल्स यूज करना, अपने क्लाउड में यूज करें, अपनी मशीन पे करें. इवन यू कैन स्टार्ट एट योर होम, अपने लैपटॉप पे वो टूल डाल के अपने घर का नेटवर्क स्कैन कर लें कि आपकी फायरवॉल जो आ रहा है PTSL या जो भी DSL या कनेक्शन है, उस पर कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी नहीं है. This is how I started learning at my home back in days. जब तो डायल अप और DSL होता था, I guess, like even at my home if I have these things, तो मुझे अपने घर का नेटवर्क पूरा पता होना चाहिए. उसकी बेसिक चीज, जैसे आप घर में अगर आप वेबकैम लगाया है सर्वेलेंस के लिए, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, किस तरह की चीजें, या तो फिर आप ऑनलाइन जो सिमुलेशन वाली लैब होती है उस पर करें. आप जैसे मैं आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स या विंडोज, उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, वो वल्नरेबिलिटीज कैसे फिक्स होती हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए. तो ये काम चाहिए कि जो फाउंडेशन जो कोर्स हैं, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट. ये आपका फर्स्ट लेवल होना चाहिए. 3 या 4 जो फाउंडेशनल कोर्सेज है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद दोस. एंड उस पे कोर्स करने के बाद भी लिखा होता है कि आपका किस डायरेक्शन में करियर डेवलप होगा, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब रोल यू विल एंटाइटल फॉर. गो अहेड प्लीज. इसमें सवाल मेरा ये है, आई एम लुकिंग एट CompTIA राइट नाउ. मैंने इनके साथ सर्टिफिकेशन का CompTIA का लिंक भी शेयर कर दिया. सो गर्ल्स यू कैन टेक अ लुक इन द चैट. इसमें जैसे मैं फॉर एग्जांपल द बेसिक IT प्रोफेशनल कोर्स दैट आई एम, IT फंडामेंटल कोर्स दैट आई एम लुकिंग एट, सिक्योरिटी फंडामेंटल, उसमें so I see that there's a buy now button for it. It's for buy exam. So exam से पर जो preparation वगैरह है वो सारी free होती है. So you can like go ahead, or do we always have to buy it each time? No, हाँ ये थोड़ा एग्जाम जो होता है वो सर्टिफिकेशन की फीस है. स्टडी मटेरियल you probably have to buy separately. So you may not. तो आपने सर्टिफिकेशन करेंगे तो वो आपको एंटाइटल करेगा कि you are certified. Right. लेकिन स्टडी मटेरियल you will have to buy separately, I believe. I don't have the website in front of me, but I think study material जितनी भी मैंने certification देखी है, you have to buy it separately. Right. So is there? So yeah. So that's wonderful. So is there any courses out there? Jisko, so just to understand whether or not these girls are actually able to get a grab on it. So instead of buying something for now, like this is $123 in itself. Mm-hmm. So that's like, you know, we're talking about 20-25,000 pe, right? Bilkul, I know. Instead of buying it, there any free courses available on Coursera or Lynda or the likes of it that they can actually take a look at and understand before they go jump into buying? Or if they feel yes, that they're really serious, then they can actually invest this kind of money into buying these courses and getting these certifications. उसके लिए offline I can come back to you. I can share some links, maybe जो proper है YouTube पे, जिस पे भी कुछ resources में आपको खुद रिव्यू करके बता दूंगा, तो एटलीस्ट उनको बेस पता हो कि इसमें क्या है. So I'll come back to you on that, and you know
Inshallah, I will share with you. When you do that, I will share it with the girls. Okay, ladies, so I will Right. share it with you after it comes back to me. I cannot hear you. I lost your voice. I'm just saying that I think this is wonderful. I think we hit the mark. This is exactly where I wanted to take this conversation to understand that जो है वो हमने शुरू कहाँ से करना है और trajectory कैसी है और जो है pay scale क्या. I think you touched on each of them a little bit. So thank you so much. All right. Okay. So yeah, this will happen. When you do, you have to be prone to all this initially. I tell you what, ये बहुत normal है and अब ये norm हो गया है, to be honest. और meeting में आ जाते हैं बच्चे, तो this is norm. इसमें कोई वो नहीं है. Yeah, absolutely. This is normal. Yeah. There. तो आप ये अभी आपने एक बात की कि cyber security has become more and more common and there are more and more jobs out there because कि अब जो है जो work from home का concept है वो बहुत ही and every organization, be it an IT company or not, is working from home, right? So every organization needs to have the right kind of infrastructure in place and have the right security. They have to have the right kind of firewalls in place and everything. So how has that sort of like as an organization, how would you say that what measures should an organization take to stay safe? So जैसे for example हम Zoom की बात कर लेते हैं, organization इस तरीके से ताल्लुक है कि everybody uses Zoom, but Zoom bombing is a very common thing, right? So organizations that are working from home, what do you think are measures that they should take? Or जहाँ पे the reason I'm asking this question again is because then that's the gap that I'm seeing जो हमारी बच्चियों के लिए job opportunity में convert करेगा. अच्छा ये measures वो लेंगे तो उनको इस तरह के professionals चाहिए, right? बिल्कुल. अब मैं प्रोडक्ट और वेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, लेकिन ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है. और इवन इन आवर फर्म और जो मैं कंपनी में काम करता हूँ, Zoom हमने यहाँ पे अलाउ नहीं किया आफ्टर द इंसिडेंट दे हैड. और Zoom बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूज होता है. तो फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल फॉर अ लॉ फर्म फॉर एग्जांपल, और इस तरह से जॉब आपको अंडरस्टैंड होगा जॉब फिर के निकलती कैसे. तो अब लॉ फर्म जो डील करती हैं उनका डेटा, कस्टमर का डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है. अगर वो अपने कस्टमर से Zoom पे मीटिंग करती हैं और वो लॉ फर्म उसको प्रोफेशनल एडवाइस दे रही है और वो वीडियो लीक हो जाती है, तो डेंजर में आ गए. और फिर वो कस्टमर्स लॉ फर्म पे मिलियंस ऑफ डॉलर का सू भी कर देगा कि तुमने ये वीडियो कहाँ रखी, तुमने मेरी वीडियो ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन प्रोटेक्ट नहीं करी. तो यहाँ गैप है कंप्लायंस एंड गवर्नेंस का. हाउ डू आई मेक श्योर कि जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ अपलोड हो रही है, यूरोप में कि GDPR होता है, अमेरिका में भी अपने कंप्लायंस हैं. तो मेरा डेटा, अगर मैं US में बात कर रहा हूँ तो मेरा डेटा US में होना चाहिए. अगर आप जर्मनी में है तो आपके जो वीडियो रिकॉर्ड होते हैं जर्मनी के अंदर ही हो. तो क्लाउड के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. तो गोइंग बैक टू दैट कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट ये Zoom की वीडियो जो क्लाउड में सेव हो रही है, फर्स्ट कोई एक्सेस नहीं कर सके, प्लस जहां ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज में. Sorry, I'm just cutting you. I'm not talking specific to Zoom. Zoom was just an example. मैं आ रहा हूँ Any small or medium. मैं उसका आ रहा हूँ. जो प्रोडक्ट जो मैंने देखी है मार्केट में, जो मैं डिप्लॉय करता हूँ, मतलब डिप्लॉय नहीं, मतलब मेरे साथ जो और लोग हैं जो उस एरिया में, हम जो मोस्ट अडॉप्टेबल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है और माइक्रोसॉफ्ट 365 प्लेटफॉर्म की. और रीजन व्हाई, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन जब डिजिटल वर्क प्लेस के उस पर जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट पे जा रही है तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में आपको वन ड्राइव, उसका ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट टीम कोलैबोरेशन के लिए, तो पूरा प्रोडक्ट और सर्विसेज एक वन सब्सक्रिप्शन में मिलता है. तो उसके मुझे आसानी क्या है कि मेरी ईमेल्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, मेरे वर्ड, एक्सेल, डॉक्यूमेंट्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं,
और मैं जो मीटिंग्स कर रहा हूँ वो भी उधर है, एंड दे गो विद मी। अगर मैं यूएस में हूँ तो मेरा सारा डेटा यूएस के डेटा सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट ने गिरा पड़ा है। ये तो एक चीज हो गई। अब मैं गवर्नेंस एंड कंप्लायंस की भी पॉलिसीज में अप्लाई कर सकता हूँ कि जो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम की टीम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड होके मेरे ही अपने प्लेस होल्डर में, अपनी स्टोरेज में वो ऑनलाइन वहां पे अवेलेबल होगी। तो मुझे पता है कि मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड हुई, फिर उस पर मैं मेरी जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है उस पर इंडिविजुअली असाइन कर सकता हूँ किसको एक्सेस देना है, कि किसी को गेस्ट एक्सेस देना है कि नहीं देना, the people within my organization will have only access to, or people within my technology group has access to it. तो इसके लिए फिर आपको ट्रेनर्स चाहिए, इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए जो कॉन्फ़िगरेशन करें। वे कंपनीज तो चाह रही हैं, ऑल एंटरप्राइज जो कंपनीज हैं या स्मॉल लॉ फर्म हो गई, दे नीड दीज काइंड ऑफ कंट्रोल्स। और फिर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इस पर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, प्लस मैं इसको लॉक कर सकता हूँ कि ये एप्लीकेशन जब मैं साइन इन करूं और अदनान जो है वर्क करता है फ्रॉम यूएस, तो देयर इज नो रीजन कि अदनान जो है साइन इन कर रहा है समवेयर कोरिया से या जर्मनी से, तो मैं लोकेशन बेस्ड पॉलिसीज लगा सकता हूँ उन पे। तो इस तरह के टूल्स एंड कंट्रोल जो मैं बता रहा हूँ आपको जूम में नहीं मिलेंगे या किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे, कि जहां आप एप्लीकेशन को बाय कंट्री, बाय लोकेशन आप उसको लॉक डाउन कर सकते हैं, आप उसमें पॉलिसीज बना सकते हैं कंप्लायंस की। फॉर एग्जांपल उसमें मैं कोई वर्ड या एक्सेल डॉक्यूमेंट डालता हूँ अपनी ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर, तो मैं उसको लॉक डाउन कर सकता हूँ कि ये गेस्ट अवेलेबल नहीं है। इवन के आई कैन गो फार्दर कि उसको जो है मैं प्रिंट लॉक डाउन कर दूं, फॉरवर्ड नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी कंट्रोल्स अवेलेबल जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर या एक फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरीके से आपने देखना पड़ता है। फिर वो कंपनीज को जब बताएंगे, प्रपोज करेंगे, हे डू यू हैव दीज टूल्स विद दिस मैनी कंट्रोल्स, और आई हैव दिस समथिंग बेटर एंड वी हैव द एक्सपर्ट स्टाफ, तो उसमें फिर आपके पास दो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिनिमम क्रिएट होती हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। एक तो बंदा या लड़का या लड़की जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताएगा कि ये कंट्रोल्स हैं, और दूसरे वो इंजीनियरिंग पॉइंट से डिप्लॉय करेंगे और ट्रेन कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। So when you were talking, I was looking at Microsoft 365 certifications. तो उसमें जो है security certifications भी हैं. So are you saying that out of all the tools out there, Microsoft is something that is the most secure, or other certifications are for the girls? I'm just talking from with regard to the girls. तो वो उसमें job opportunities ज़्यादा अच्छी हैं cyber security के हवाले से? ये तो आपको लोकल मार्केट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, दोनों हैं यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर एजुकेशन की तो बहुत डिमांड है अभी। इनफैक्ट मैंने अपने एक दोस्त के साथ ह्यूस्टन में पूरा स्कूल माइग्रेट किया है गूगल से माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, एंड आई सेव्ड देम $25,000। तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी राइट देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अदनान, क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा सा वी गोइंग टू बी रनिंग अ लिटिल बिट ओवर टाइम, and I haven't even asked if the girls have any other questions. I have one question because I wanted to sort of like link this to my question. जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान का तो आपको नहीं पता, लेकिन यूएस में माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्टिफाइड प्रोफेशनल डिमांड है, स्पेशली इन द सिक्योरिटी डोमेन. सो डू यू थिंक दैट, और शुरू में आपने बात भी की थी कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान में कंपनी खोलते हैं, वो इस तरह के सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो है पाकिस्तान से हायर करते हैं, बिकॉज इट सेव्स देम, अगर वो $1,500-2,000 देते हैं वर्सेस जिसको वहां पे वो $6,000 से $8,000 देते हैं पर मंथ, तो कंपेरेटिवली चीपर है. सो डू यू थिंक दैट इट इज ए win-win, or is that the kind of jobs that we should be looking at globally, और या वो jobs available होती हैं? और एक और इसी हवाले से, इसी को लाइन अप करके एक और सवाल जो मेरा है, आपने बीच में एक बात की थी, आपने कहा कि जी फ्रीलांसर पे कोई ये नहीं देखता कि आपने डिग्री की हुई है या नहीं की हुई है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत देखी जाती है. ये जो जॉब आती हैं बाहर, जैसे अभी आपने जिस जॉब की बात की, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट 365 प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं हम,
तो ये क्या ये भी देखते हैं कि सर्टिफाइड हुए हैं, एक्सपीरियंस है, ये भी देखते हैं कि डिग्री है नहीं है? सो ये दोनों बातें, ठीक है। थैंक यू। दोनों दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आपका पहला क्वेश्चन, इज दिस एन एरिया वन शुड एक्सप्लोर एंड स्टार्ट बिल्डिंग करियर? आंसर इज यस। टीम्स की तभी बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान में देख लें, एक से एक लड़के जो डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग से आते हैं, तो देयर यूज्ड टू बी अ प्रोडक्ट, स्टिल प्रोडक्ट एग्जिस्ट, लाइक हर चीज ऑनलाइन चली गई है। शेयर पॉइंट डेवलपर पाकिस्तान में बहुत मिलेंगे, .NET डेवलपर बहुत मिलेंगे, एक्सचेंज के इतने नहीं मिलेंगे। तो मेरी एक्सपर्टीज कोर में स्टार्टेड फ्रॉम ईमेल से एक्सचेंज सर्वर। सो पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं वो, क्योंकि बहुत सारी इसमें डिटेल्स है, लेकिन .NET और शेयर पॉइंट का आपको बहुत लड़के मिलेंगे। अब टीम का जो अंडरलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उसमें एक सिग्निफिकेंट जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी चल रही है शेयर पॉइंट, तो बहुत से लड़के वहां से माइग्रेट करके शेयर पॉइंट से टीम्स पे भी आए हैं, सो दे नो द आर्किटेक्चर। इसी तरह एक्सचेंज पे भी। तो इसको क्यों एक्सप्लोर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो जून के बाद जो हुआ, माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन हैज गॉन मोर देन डबल। अब वो इतनी अडॉप्शन हो गई, तो ऑफ कोर्स जॉब क्रिएट हुई। जब बिजनेसेस, स्कूल एंड कॉलेज, एवरीबॉडी नीड दैट एप्लीकेशन, तो वहां पे स्किल्स की डिमांड बढ़ जाती है, गैप्स आ जाता है, तो होना चाहिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहां पे इन पाकिस्तान में भी अच्छी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी नहीं है, वो खुद इसको अगर यूटिलाइज करें देन दे विल नो। और वहां पे लोकली इतनी जॉब प्रोड्यूस हो जाएंगी, नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर बट ऑल्सो स्कूल एंड कॉलेजेस में, क्योंकि आपने क्विज बनाने हैं, आपने स्टूडेंट की ग्रेडिंग करनी है, ये सब टीम्स अवेलेबल हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो हर फ्री वर्जन में नहीं होता। वी हैव टू कम आउट दैट माइंडसेट के फ्री फ्री नहीं होती हर चीज। कोई भी चीज अब आपको पेड मिल रही है, उसकी क्वालिटी है। आप शॉपिंग भी करने जाएंगे तो 2000 का कपड़ा और 5000 के कपड़े में फर्क होता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में भी आपने फीचर इवेलुएट करने होते हैं। और आज के दौर में जो मैं टाइम लगा रहा हूँ किसी टेक्नोलॉजी पे या बिजनेस पे, 3 या 6 महीने, आई हैव टू डू द राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट टाइम इन द राइट टेक्नोलॉजी। अगर नहीं करूंगा तो मैं 6 महीने की बजाय 2 साल पीछे हो जाऊंगा। तो यस, वन शुड एक्सप्लोर। अब सर्टिफिकेशन ऑफिस 365 पे आ जाते हैं और उस पर आ जाते हैं। ऑफिस सर्टिफिकेशन इसलिए मैटर करती है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपने सर्टिफिकेशन कर ली, तो मेरा जैसा बंदा आपको इवेल्युएट, जो भी कैंडिडेट है उसको देखेगा, ठीक है अगर इसका डिग्री नहीं है तो 2 साल में इनके जॉब प्रोफाइल ये इन्होंने ये काम किया हुआ है, नाउ सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब somebody has appeared and proved his जो उसकी जो स्किल सेट को प्रूव किया है कि कॉम्पिटेंसी ये मीट कर रहे हैं। अगर कोई जो सिर्फ जो है आपको क्या कहते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस नहीं हो, तो इट मे नॉट गोना फ्लाई, क्योंकि अगर जॉब पे और आपको काम नहीं आ रहा, तो यू एंड अप जस्ट डूइंग द एंट्री लेवल थिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो दैट्स द थिंग। सो एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन मैटर्स। और बाज़ का सर्टिफिकेशन इस सिनेरियो में भी आपका फेवर करती है। फर्स्ट करें आपका बैचलर्स केमिकल इंजीनियरिंग में या किसी और फील्ड के अंदर है और आपने आईटी में आना है, तो फिर आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके जब सर्टिफिकेशन करके आते हैं, तो वहां पे भी आपको सर्टिफिकेशन हेल्प करती है। तो पाकिस्तान में आई थिंक अभी तक सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, जैसे मैं आपको बताया, तो वहाँ सर्टिफिकेशन मैटर करती है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स हैं। और आप ज्यादा सर्टिफिकेशन लेंगे, इट विल लुक गुड ऑन योर प्रोफाइल, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है। और जब आप अपवर्क इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं, तो सर्टिफिकेशन मैटर्स। और तीसरा जो अच्छा पॉइंट, आपको सर्टिफिकेशन ज्यादा होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट या AWS या गूगल के जो पार्टनर्स होते हैं, दे विल प्रेफर यू, दे विल हायर यू, क्योंकि उनकी प्रोफाइल में ये होता है कि हमारे पास सर्टिफाइड कंसल्टेंट है। तो इसे इन्वेस्टमेंट, ये ना सोचे कि मैंने कर लिया और नहीं मिल रही। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव एन एक्सपीरियंस एंड यू हैव टू हैव सर्टिफिकेशन, इट्स अ विन विन। और ये मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूंगा कि जब मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं थी एक जमाने में 5-6 साल पहले, तो मुझे जॉब मार्केट में मसला होता था। सर्टिफिकेशन करने के बाद इट लिटरली helped me a lot, and somebody having experience, they should keep continuing and updating their certification as well. I think that's very spot on with Lara, and that's exactly what I was looking for. पर हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, ये समझती हैं कि ठीक है नहीं ली है,
क्योंकि मैंने डिग्री नहीं की हुई है, तो मैं शायद जो है वो इसको मैं शायद I cannot go ahead and make a career in cybersecurity or advanced like whatever. लेकिन I think ये बात जो है ये इसने इनको थोड़ा सा relax कर दिया होगा. So yeah, I think that's all the questions I have, and I think you very nicely basically cover किया. Thank you so much. We'll wait. If the girls have any more questions, please raise your hand and ask questions. Otherwise, I can move it, give the mic to Adnan to say his final words. Does anybody have any questions right now? मैंने आपसे सवाल पूछ लिए, ये भी हो सकता है कि I would have asked. Yes, you had all those good questions. So right, so let's wait for any of them to type any questions. But while we wait, I would like for you to give us your final words, so that we can take that home and listen. Yeah. बस फाइनल ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जो फाउंडेशन नॉलेज किसी भी करियर में, स्पेशली आईटी में, अगर आप डेवलपमेंट साइड पे हैं या आईटी के ऊपर आपके पास फंडामेंटल स्किल्स जो मैं बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होने चाहिए. अगर आप क्लाउड पे जा रहे हैं, वेंडर बेस्ड सर्टिफिकेशन या वेंडर बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज की डिमांड है, जिससे कि वेंडर बेस्ड का मतलब अगर आप AWS का करियर पैथ लेने हैं तो जस्ट फोकस ऑन दैट, या गूगल क्लाउड का पैथ ले लें वो ले लें, या माइक्रोसॉफ्ट का. दीज कंपनीज हैव इन्वेस्टेड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर. इनके जो डेटा सेंटर है फुटबॉल स्टेडियम से ज्यादा बड़े हैं. So it's no kidding, तो करियर वेरी गुड है इन ऑल दीज थिंग में. वन शुड प्लान कि भाई एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 से 2 साल का शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए. लॉन्ग टर्म अलग होता है, और उसमें देखें, अपने आप को एवेल्युएट करें, और इट्स अबाउट पैशन. आप जो टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रहे हैं, आपको उसमें खुद अपना पैशन डेवलप करना है. नहीं समझ में आ रही, मूव ऑन टू डिफरेंट. विदिन टेक्नोलॉजी देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज. अगर नहीं आ रहा समझ में तो किसी और पे जंप करना है. दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट योरसेल्फ इन फ्यू मंथ्स, एंड देन you'll go from there. Or they should also seek advice or something, even people like you, because you can also help them, direct them, because you bring those expertise. So people should look for mentor. I highly emphasize on that कि mentorship करें. और mentorship ऐसे नहीं होती कि आपने जा, you have to ask the question, legit question, so that's, I would say, tech industry मार्केटिंग बहुत लुक्रेटिव है, बहुत पैसा है, जॉब मार्केट बहुत अच्छी है. You just need to take the right track. Yeah, I think the IT market, just to end it off, I think the IT market now is better than it was 3 months ago. Even though the other sectors have taken a downturn due to COVID, I think IT has taken an upturn, because obviously everything is online. So सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो IT इंडस्ट्री को हुआ है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो एरियाज जिन सेक्टर्स को फायदा हुआ है वो एडटेक के हवाले से साइबर सिक्योरिटी को बहुत फायदा हुआ है. So I think there's upward trajectory there. People, so there's lots of jobs in there. So yeah, thank you so much, Adnan, for your time. I think I did a lot of learning, and I'm sure the girls did as well. So we'll keep in touch, and we will ask you more questions. And if I will share your email address with the girls, if that's okay, in case they have any more questions, they can directly ask you via email. Would that be fine? Yeah, sure. And I will share some more information offline on the email, and any question they may have. Definitely, I'll be more than happy to help with that. Right. And I'll share those resources you asked for me also. Please do. Please do. Thank you so much, and have a great day. Take care. Yeah, I appreciate it. Thanks, everyone. Assalamu alaikum.